Hey, hi, hello everyone. I'm Aprajita and welcome back to our very own YouTube channel Barikiyan, where we get to talk, discuss and learn about anything and everything. So as you have already read the title, today's video is going to be about 5 things that we need to know about discipline. Okay, before starting this video, I want to give one disclaimer that this video doesn't mean that I have cracked it. This doesn't mean that I am a very disciplined person or I am sitting here to teach you, no, you should do like this or like that. No. This video is basically about 5 things that I have discovered about discipline that I thought will be very important to share with you. Okay, so keeping your hopes right, I think we should get into the video, shall we? Okay, so the first point is, it's a pure consistency game. See, डिसिप्लिन हम लोग ये समझते हैं कि 4 बजे उठना, ठीक है, और 10 बजे सोना रात में is discipline. Whereas what I have found it that it is not. ठीक है, it's okay, it's fine, it's well and good that if you can get up early at 4 o'clock and you can sleep early at 10 o'clock at night, that's completely fine. That's more than enough. But even if you don't, that doesn't mean that you're not disciplined. What actually discipline means कि आपने किसी टास्क को अगर ये तय किया है कि मुझे ये काम करना है और उसको आप डेली कर रहे हैं, अपनी उन सारी इच्छाओं को मारते हुए जो आपको वो काम करने से रोक रही हैं, that is something that we call as discipline. ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब किसी एक काम को रोज करना, ठीक है. इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम उठाते हैं या जब भी आप कोई काम टास्क जो है वो आप लेते हैं, ठीक है, उस टास्क को लेने से पहले ये बात जरूर चेक करनी चाहिए कि ठीक है, 1 दिन क्या हम कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, बट क्या मैं वो टास्क रेगुलरली कर सकती हूँ या रेगुलरली कर सकता हूँ. Okay, so this discipline is more or less a consistency game. Okay, it's not about doing your task at a certain time or doing your task right. It's also not about that. It's just about कि आप किसी भी तरह से डेली वो 21 दिन में जो बोलते हैं कि 21 दिन में कोई हैबिट बनती है या 21 दिन में कोई हैबिट बिगड़ती है या छूट जाती है, ठीक है, तो वो 21 दिन का वो ब्लॉक मिस नहीं होना चाहिए. आपने अच्छा किया, बुरा किया, खराब किया, जैसा भी किया, that doesn't matter, but वो एक भी ब्लॉक मिस नहीं होना चाहिए. That is all about consistency. Okay, so the next thing, means the second point that I found about discipline is that कि discipline सिर्फ और सिर्फ काम के लिए नहीं होता. It's also about values. What values you carry. जैसे मेरी एक अपनी पर्सनल एक वैल्यू है that I in most difficult circumstances, in any circumstance for that matter, मैं किसी भी circumstance पे ये कोशिश करती हूँ कि मेरे किसी भी बात से सामने वाले को गलती से भी ये फील ना हो कि मैं उसे डिमीन करने की कोशिश कर रही हूँ. Okay, you know, sometimes when you talk about yourself or when you have to tell about yourself or certain circumstances arise in a way कि आपको अपने बारे में कुछ चीजें बतानी ही पड़ती हैं, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस, कुछ अच्छाइयां या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपने बारे में बतानी ही पड़ती है. वैसे टाइम पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाले को ये पता चल जाए, ये लगे कि अरे अपने आप को बहुत बन रही हैं या मुझे डिमीन करने की कोशिश कर रही हैं. अच्छा, अगर इफ शी इज वेरी गुड, सो व्हाट डज शी मीन, दैट आई एम नॉट अ गुड पर्सन और आई एम अ वेरी बैड पर्सन और समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू दैट आई कैरी और आई एडहर टू. ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक काम को टाइम पे कर रहे हैं या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं. गुड, इफ यू आर डूइंग इट, वेरी गुड. डिसिप्लिन ऑल्सो मीन्स व्हाट वैल्यूज यू कैरी, और उस वैल्यूज को हर सर्कमस्टांस में प्रोटेक्ट करना भी डिसिप्लिन है. ये चीज मैंने जानी है डिसिप्लिन के बारे में.
So our second point is values. Protect your values and stick to the values that you get. Okay, so the third point is something that blew my mind away. And the third point is that discipline gives you freedom. Oh my God. For whole of my life, I kept on believing कि इतने टाइम पे उठ जाओ, इतने टाइम पे नहा लो, इतने टाइम पे खा लो. Why can't I have my own thing? This was my complaint. But when I knew this fact, and I will tell you how. For example, आप एक साइड हसलर है, ठीक है, आपको जॉब भी करनी है और आप अपना कुछ साइड हसल करते हैं because you want to, get financial freedom. अब आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, आप सुबह उठते हैं और डायरेक्ट अपने काम पे लग जाते हैं क्योंकि आपको 11 बजे से 9 बजे से या कभी भी एक टाइम है जिससे आपको ऑफिस करने, क्योंकि ऑफिस तो आपको टाइम पे जाना है. तो आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? ओपन योर लैपटॉप एंड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर साइड हसल. अब क्या होता है इसमें ना कि एक आपके दिमाग में कंटिन्यूअस ये चीज चलती रहती है कि अभी वो काम भी करना है, अभी वो काम भी करना है, अभी नहाना भी है, अभी खाना भी है, अभी खाने के लिए लोग बोलने लगेंगे, अभी ये करने लगेंगे. तो that becomes a permanent distraction for yourself. यानी कि जिसको हम लोग समझते थे कि अरे ठीक है, इस चीज को हम असाइड रखते हैं, वो आपके असाइड रख देने से तो असाइड नहीं हो जाएगी ना. You need fuel, your body needs fuel to run. तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, है ना, या अपनी जो भी हाइजीन की जो चीजें वो तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, या और भी सारी जो चीजें वो आपको करनी पड़ेंगी. तो ये आपके काम के बीच में आने लगती है अगर इनका कोई टाइम नहीं होता है. Now imagine yourself like this कि आपके पास सारे काम के लिए टाइम बटा हुआ है कि मुझे इस टाइम इसके बाद मुझे नहा लेना है, इसके बाद मुझे खा लेना है. या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो शाम को ही खाना खा लेते हैं, ठीक है, रात होने से पहले वो खाना खा लेते हैं. They prefer to eat at around 6 o'clock or something, ठीक है. तो उनका क्या होता है कि उनका पूरे दिन का जो काम होता है ना, वो उसी के अराउंड, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो प्लान हो जाता है. और आप कभी करके देखिएगा, जब आपके पास ये प्लान होगा ना कि मुझे अपना काम करने से शुरू करने से पहले जो मेरे खुद का जो काम है, माय हेल्थ एंड हाइजीन वर्क, वो मैं फिनिश कर लूंगी या वो मैं फिनिश कर लूंगा. आप इसको आजमा कर देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड, दिस वर्क्स. योर एंटायर डे इज सॉर्टेड. दिस इज व्हाट आई फील. ये लाइन पढ़ने के बाद मैंने इसको सचमुच ट्राई किया है एंड this is something that I have experienced, and I'm saying it with my experience that it really works. So yeah, try this. It really gives you freedom. Okay, so the fourth point is start easy. Now what do I mean by this? आप जब भी अगर सपोज ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर बहुत जोश आ गया कि oh my God, आज से तो मैं 4 बजे उठूंगा या मैं 4 बजे उठूंगी, ठीक है, और 4 बजे उठूंगी और सबसे पहले मैंने अपना फ्रेशन अप होकर के मैं सबसे पहले बैठूंगी, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी. मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन तो मुझे कल खत्म कर देना है, बिल्कुल बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, ठीक है, और अब खत्म कर देना. उसके बाद से मैं बायो का एक चैप्टर और उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आज बिल्कुल खत्म हो जानी ही चाहिए. अब हुआ क्या कि आपने टारगेट बना लिया इतना बड़ा, और अभी आपने डिसिप्लिन के साथ, आज आपका पहला दिन है, आपकी कैपेसिटी है इतनी, ठीक है, और जब आपने सिलेबस देखा फ्रेशन अप होने के बाद, जब आप बैठे सिलेबस देखने, तो आपको लगा कि ओ माय गॉड, बायोकेमिस्ट्री तो बाद की बात है, पहले तो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होगी, ठीक है. तो ये चीजें जो है ना वो आपको अल्टीमेटली डिमोटिवेट करती है, ठीक है, और फिर आपको लगता है कि यार डिसिप्लिन मेरे बस की चीज नहीं है. अरे डिसिप्लिन आप ही के बस की चीज है, मेरा यकीन मानिए, बस आप उसको सही तरीके से शुरू नहीं कर रहे हैं. अगर कोई भी, नॉट ओनली डिसिप्लिन, कोई भी टास्क जब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए नया होता है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विथ द इजीएस्ट वन. आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि कल मुझे, अगर मैं 4 बजे या कभी भी मुझे जब भी उठना है, कल मुझे ट्रिग्नोमेट्री हर हाल में खत्म कर लेनी है. ये टास्क रखना है आपको,
ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट विथ समथिंग इजी. आप रोज 8 बजे उठ रहे हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गेट अप एट 4. नहीं हो पाएगा. आपकी बॉडी को 8 बजे उठने की आदत है, वो अगर 4 बजे उठ भी गई ना तो फिर वो 7 बजे तक सो जाएगी. ठीक है, 8 बजे आपको उठने की आदत है, कोई बात नहीं है. 7:30 का अलार्म लगाओ या 7:30 में उठने की कोशिश करो. फिर 2 दिन 3 दिन 7:30 में उठे, फिर 7 बजे उठने की कोशिश करो. ठीक है, तो डिसिप्लिन ऑलवेज नीड्स टू स्टार्ट विथ इजीएस्ट टास्क, है ना. दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोन अबाउट डिसिप्लिन. स्टार्ट इजी. Okay, so the last point is that discipline needs time. What do I mean by this? Let me explain you with an example. Suppose आज ये वीडियो देखने के बाद एक स्टूडेंट ने ये तय किया कि कल से मुझे डेली मैथ्स लगानी है. आई एम वीक इन मैथ्स, सो मैं डेली मैथ्स लगाऊंगा या मैं डेली मैथ्स लगाऊंगी. उसने 2 दिन मैथ्स लगाई, 3 दिन लगाई, 4 दिन लगाई, 5वें दिन उससे मैथ्स मिस हो गई फॉर सम रीजन. मान लेते हैं कि उसका मन नहीं किया मैथ्स लगाने का. ठीक है, उसने मैथ्स नहीं लगाए. अब वो क्या सोचेगा पता है? अरे यार, ये डिसिप्लिन तो मेरे बस की चीज ही नहीं है, छोड़ो इसको. अब क्या होगा इससे कि वो 5वें दिन मैथ्स नहीं लगाया, 6वें दिन भी नहीं लगाएगा, 7वें दिन भी नहीं लगाएगा. तो पता है क्या होगा कि ये 4 दिन उसने जो मैथ्स लगाए हैं, 5 दिन, जो भी जितने भी दिन उसने मैथ्स लगाए हैं, ठीक है, चूंकि यहां पर वो कंटिन्यूटी में था, ये जो है वो ये भी भूल जाएगा और आगे तो वो लगा ही नहीं रहा है. तो अब उसकी वो हैबिट ही खराब हो जाएगी, वो कभी नहीं बनेगी. और यही अगर वो मान लीजिए 5वें दिन नहीं लगाया, 6वें दिन भी नहीं लगाया, है ना, तो वो ये सोचे अच्छा ठीक है यार 2 दिन नहीं लगाया तो आज से स्टार्ट करते हैं. और फिर लगाया, 7वें दिन लगाया, 8वें दिन लगाया, फिर 9वें दिन नहीं लगाया, फिर 10वें दिन लगाया. इस तरह से वो हैबिट बन जाती है मैथ्स लगाने की, वो डिसिप्लिन में रहने की. डिसिप्लिन इज अ हैबिट एंड एनी हैबिट नीड्स टाइम, और वो टाइम एंड पेशेंस. ठीक है, आप अगर अपने साथ रूड हो जाएंगे कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, आई एम वर्थलेस, तो फिर वो चीजें नहीं होंगी, वो कभी नहीं होंगी. ठीक है, क्योंकि दुनिया कहती है ना कि डोंट बी रूड टू अदर्स. आई से फर्स्ट डोंट बी रूड टू योरसेल्फ, डोंट बी हार्श टू योरसेल्फ. आप खुद के साथ अगर हार्श नहीं होंगे तो आप किसी के साथ हार्श नहीं होंगे. ओके, so first try to love yourself and forgive yourself. ठीक है यार, 5वें दिन नहीं लगाया, 2 दिन नहीं लगाया, क्या हो गया, 7वें दिन से लगाएंगे, 8वें 9वें दिन क्यों, कोई बात नहीं, 10वें दिन से लगाएंगे. ठीक है ना. तो जब आप 10वें दिन लगाओगे तो पता है आपको वो 8वें और 9वें दिन के गैप करने का पेन होगा कि अरे यार काश अगर 2 दिन लगाए होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. तो फिर आप 10वें दिन लगाओगे, फिर आप कहोगे नहीं यार अब उसको कंटिन्यू करना है. फिर 11 12 13 14 ऐसे लगेगा, है ना. फिर 15 दिन अगर गलती से मिस हो गया तो वो कुड़न होगी कि नहीं यार लगाना चाहिए. आप खुद को फोर्स करोगे उस चीज को करने के लिए. दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन. इट्स अ कंसिस्टेंसी गेम, ट्रस्ट मी, एंड इट इज अचीवेबल. बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये अचीवेबल नहीं है. इट इज वेरी मच अचीवेबल, ट्राइड एंड टेस्टेड. नॉट दैट आई हैव फिगर्ड इट आउट, बट आई एम फिगरिंग इट आउट, एंड व्हाटएवर आई हैव लर्नड आई हैव जस्ट said in this video. Okay, so yeah, that was the last point. Hope you have learned something. And yes, अगर मैंने इस पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट मिस किया है, आई एम श्योर आई हैव मिस मेनी पॉइंट्स, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि वो क्या चीज है जो आपने डिसिप्लिन के बारे में अभी तक सीखी है. So yeah, that was all for today's video. One request that I would like to make is that please tell me in comment section what is the new video that you want to see, what is the new topic on which you want me to make a video. Okay, and yes, with this we have come to an end of this video and I will take your leave. And thank you for watching. Do let me know your feedbacks by hitting that like button, subscribing to this channel, commenting below, and also don't forget to hit that notification bell so that you get to know every time I'm up with a new one. Thank you. Bye bye.